Hello student, good morning. I am Dr. B.K. Varun from Medco Point, Patna, and the today class is related to the respiratory system, that is gaseous exchange. So the exchange of gas, that is the exchange of oxygen and CO2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli. So the transportation and exchange of gas. So जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो डिफ्यूजन पर डिपेंड करेगा. डिफ्यूजन मतलब इट इज बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. हाई से लो या लो से हाई. तो पार्शियल प्रेशर मेनली यहाँ पर दो गैस की बात होती है, एक ऑक्सीजन और एक CO2. गैस तो बहुत है इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन भी है, लेकिन हम लोग दो गैस की बात करते हैं. ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं. और ऑक्सीजन जाता कहाँ है? तो ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से होते हुए लंग में जाएगा और लंग के बाद उसको हीमोग्लोबिन ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू तक, और टिश्यू में CO2 मिलेगा और CO2 कंबाइन कर जाएगा. किससे करेगा? CO2 कंबाइन करेगा ब्लड ग्लूकोज से, शुगर से, क्योंकि वो वहाँ पर भी शुगर मौजूद है. तो जो टिश्यू में शुगर है, ब्लड में रहता है शुगर, फिर वो टिश्यू में जा कर के डिफ्यूज होता है विद द हेल्प ऑफ GLUT4. सो जब टिश्यू में चला जाएगा ग्लूकोज, तो वही ग्लूकोज टिश्यू में CO2 से कंबाइन करके बनाएगा वाटर, ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाएगा वाटर और CO2. तो ऑक्सीजन सबसे पहले लंग लेवल से ब्लड लेवल में आएगा और वही ऑक्सीजन फिर चला जाएगा टिश्यू में, और टिश्यू में उसको कौन मिलेगा? ऑक्सीजन को ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके बनाएगा CO2, और फिर वो CO2 ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यू से ब्लड, फिर ब्लड से लंग. इसको हम लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो तीन फिनोमिना यहाँ हो रहा है: एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन अल्वेओलाई एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2. ट्रांसपोर्टेशन CO2 का अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है O2 और CO2 का. O2 आ रहा है लंग से टिश्यू, CO2 जा रहा है टिश्यू से लंग. और इसके लिए दो फिनोमिना भी रिस्पॉन्सिबल है, बोर्स इफेक्ट और हल्डन इफेक्ट. तो बोर इफेक्ट सपोर्ट करता है कि ऑक्सीजन आ रहा है लंग से टिश्यू में, और हल्डन इफेक्ट सपोर्ट करता है कि CO2 टिश्यू को छोड़ करके ब्लड से और फिर ब्लड से छोड़ करके अल्वेओलाई में जा रहा है. तो बोर इफेक्ट फेवर करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू, और हल्डन इफेक्ट फेवर करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग. सो द एक्सचेंज ऑफ गैस mainly depends upon the three factors. First is solubility. Solubility means the CO2 is more soluble with respect to O2, and it is around 20 to 25 times. So the more solubility, more diffusion of the gas. Next is partial pressure. The partial pressure always transported from high partial pressure to low partial pressure, such as in case of oxygen 159 mmHg partial pressure and atmosphere air, and the partial pressure of O2 on the alveoli is 104. That means transportation from the atmosphere to alveoli, that is high to low. So partial pressure or pressure gradient, that is difference in pressure, high pressure to low pressure. And the thickness of membrane, it also depends upon thickness of membrane. More thickness, less diffusion, less thickness, then more diffusion. And it is thickness of the membrane, that is the diffusion membrane thickness or respiratory membrane thickness, or it is also called alveolar capillary membrane thickness, and it is thickness is around 1 millimeter, that is around 0.2 micrometer, 0.5 micrometer. So this is the thickness. And this diffusion membrane or respiratory membrane or alveolar capillary membrane is made up of three things. So this is the structure of the alveoli, and this is the blood capillary, and this is alveolar wall, and there is a basement membrane between this. So the first is a squamous epithelial cell. So a squamous epithelial cell of alveoli is the first membrane, and second is the endothelium. So endothelium lining of alveolar capillary, and third is a basement substance. So basement substance present between the squamous epithelial of alveoli
एंड एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द अल्वेओलर कैपिलरी। इस तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या एल्वेओलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। और ये हमेशा ट्रांसपोर्टेशन जो होगा हाई से लो होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी का डाटा आपको पता होगा, उसमें कुछ दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर। तो कम से कम 3-4 आप याद रख सकते हैं कि यदि ऑक्सीजन और CO2 है, हम लोग दो ही की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात नहीं करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो लेने में एक्टिव माने ATP लगता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस और निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और छोड़ने में ATP नहीं लगता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। इसलिए इंस्पायरेशन आपको बताए थे पिछले क्लास में कि इंस्पायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, एंड एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। तो एटमॉस्फेयर पर ऑक्सीजन और CO2 कितना है 159.3, जबकि अल्वेलाई में 104 और 40 है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और 45 है, O2 CO2 रिस्पेक्टिवली, जबकि ऑक्सीजनेटेड में 95 और 40 है और टिश्यू में 40-45 है। और एक्सपायर्ड एयर में 120 ऑक्सीजन का है और 27 जो है mmHg CO2 का है। सो दीज आर द मेनली responsible for the transportation of high partial pressure to low partial pressure. So exchange takes place between firstly between the alveoli and this is the alveoli and blood, and second between the blood and tissue, and third is transportation of gas. So the first is inspired air, ऑक्सीजन आ रहा है अल्वेओलाई में, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है और फिर यहाँ पर आ गया 40, तो 104 है, यहाँ 40 है और यहाँ पर आकर के इसका 95 है। तो ऑक्सीजन पर बाहर में 159 था और यहाँ 104 है, तो 159 ज़्यादा है, 104 कम है, तो हाई से लो की ओर आए। फिर जब यहाँ पर आ जाएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये चला जाएगा लंग में, लेफ्ट हार्ट में जाएगा, लेफ्ट ऑर्किल ऑफ द हार्ट, और फिर यह ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 है, तो फिर वह 104 से 95 हाई से लो। और फिर जैसे ही टिश्यू में आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, तो 95 ऑक्सीजन है, यहाँ 40 है, तो 95 ज़्यादा है, 40 कम है, तो 95 से 40 हाई से लो की ओर चला गया। जैसे यहाँ CO2 गया तो उसको कौन मिला, वहाँ टिश्यू में ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज कंबाइन किया C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O, प्लस एनर्जी रिलीज होगा 36 या 38, जो कि पिछले क्लास में बताए थे, ऑन द फॉस्फेट शटल एंड ग्लिसरॉल मैलेट अस्पार्टेट शटल एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में 36 बना था, मैलेट अस्पार्टेट में 38 बना था। तो एनर्जी रिलीज होने के बाद ये CO2 बन गया और CO2 फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर देखिए कितना है, 45 है, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर यहाँ जब आएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि जैसी बॉडी में CO2 मिलता है तो ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड, और ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजनेटेड, इसलिए लंग से हमेशा आएगा हार्ट की ओर ऑक्सीजनेटेड, लेकिन हार्ट से जब दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CO2 मिल गया तो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, तो ये बॉडी में मिल चुका है, तो CO2 जैसे उसको मिलेगा और CO2 जब मिलेगा तो वो हार्ट में जाएगा, तो हार्ट में आएगा जिस वेन से, उसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में चूंकि लंग से आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड। तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ये राइट ऑर्किल से फिर निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी से, तो पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड चला जाएगा। तो यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है, यहाँ 40 है, तो 5 का डिफरेंस है, तो 45 से 40 गया। और फिर एक्सपायर्ड एयर बाहर में, यहाँ पर जैसे ही 40 गया तो 40 और बाहर में CO2 का 27 है, तो 27 और 40 मैंने डिफरेंस है, तो यहाँ 40 है और बाहर 27 है, तो फिर हाई से लो गया तो बाहर चला गया। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि हमेशा हाई से लो पार्शियल प्रेशर की ओर डिफ्यूज होता है। और जब ट्रांसपोर्ट होगा गैस का, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा 3% बाय द प्लाज्मा, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा, और 97% जाएगा RBC से, जबकि CO2 7% प्लाज्मा में जा रहा है। क्यों डिफरेंस है, 3% प्लाज्मा से जा रहा है ऑक्सीजन, जबकि CO2 7% लौट रहा है टिश्यू से लंग में, और ऑक्सीजन 3% प्लाज्मा में आ रहा है। तो हम पहले ही बताए कि जो सॉल्युबिलिटी है CO2 का वो 20 से 25% ज़्यादा है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में,
इसलिए वो 3% आ रहा है तो ये 7% जा रहा है। ऑक्सीजन 3% आ रहा है प्लाज्मा के थ्रू, कहाँ से कहाँ, लंग से टिश्यू, जबकि ये 7% जा रहा है टिश्यू से लंग में, क्योंकि सोलबिलिटी CO2 का ज्यादा है। और 70% जाएगा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, जो कि जिसमें हम बताया था हैम्बर्गर फिनोमिना कि बाइकार्बोनेट आयंस जब आरबीसी में जाता है तो उसका पीएच बढ़ने लगता है, तो पीएच इम्बैलेंस होने के कारण बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होता है अगेन आरबीसी टू प्लाज्मा, और क्लोराइड आयन शिफ्ट होता है प्लाज्मा टू आरबीसी। दिस इज कॉल्ड हैम्बर्गर फिनोमिना, क्लोराइड शिफ्ट। और 30% जो 23%, 23 से 25% हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है वो CO2 को कैच करेगा और वो बना लेगा कार्बा इम्यूनो हीमोग्लोबिन। तो वो चूंकि ग्लोबिन पार्ट है प्रोटीन का, तो जो मान लिया बताया था कि ये जो है हीमोग्लोबिन में ये हीम है, तो हीम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो वो ऑक्सीजन उसको कैरी करेगा हीम, जबकि उसी हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वो उसको ढो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबिन। तो ग्लोबिन CO2 को पकड़ेगा और हीम ऑक्सीजन को पकड़ेगा। तो हीम जब लाता है ऑक्सीजन को तो वो ब्लड कैपिलरी होते हुए टिश्यू में लाएगा, ब्लड वेसल होते हुए, जबकि CO2 ले जाएगा टिश्यू से ब्लड वेसल से लंग में, तो ये ले जाएगा कार्बा इम्यूनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, तब बनाएगा कार्बा इम्यूनो हीमोग्लोबिन। जबकि एफिनिटी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का है, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, 250 टाइम्स मोर एफिनिटी है। और कभी कभी जब ये हीमोग्लोबिन फ्री होता है तो H+ आयन से भी कंबाइन करता है, तो बोलते हैं हीमोग्लोबिन कंबाइन विद H+ आयन तो हीमोग्लोबिनिक एसिड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये ऑक्सीजन का हो रहा है बाई प्लाज्मा आरबीसी, और CO2 को हो रहा है प्लाज्मा बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, जो कि ब्लड से ही हो रहा है, और आरबीसी जो कि हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट CO2 को कैरी कर रहा है। तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस याद रखना है 1 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम, NCERT में दिया है डाटा, और 0.2 माइक्रोमीटर एवरेज इसका रेंज है, जो कि 3 चीज का बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियल, इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वेओलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सबस्टांस। सो दीज आर द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थैंक यू।